فصلی امتحان۔ آداب، اردو خبرنامہ لے کر میں ہوں محمد اعظم۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 2001 کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ ملک ان شہیدوں کی دلیری، بہادری اور قربانی کو ہمیشہ رکھے گا یاد، وزیر دفاع۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پی ایم شری اسکول اسکیم کی عملاوری کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت۔ بچوں کے لیے اسکولوں کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی دی ہدایت۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں وادی بھر میں پروگراموں کا سلسلہ جاری۔ لوگوں کو مرکزی معاونت والی اسکیموں کی دی جا رہی ہے جانکاری، اور کشمیر وادی میں درجہ حرارت میں بتدریج گراوٹ۔ سری نگر میں گزشتہ رات اس موسم کی سرد ترین رات درج۔ اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ملک آج ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جنہوں نے 2001 میں آج ہی کے دن ہوئے دہشت گردانہ حملے میں بہادری سے پارلیمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنانے والے بہادر سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 9 سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک ہمیشہ بہادر سیکورٹی اہلکاروں کا احسان مند رہے گا۔ انہوں نے ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے عہد کو دہرایا۔ بہادر سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ خطرے کی صورت میں سیکورٹی اہلکاروں کی دلیری اور قربانی قوم کی یادوں میں ہمیشہ نقش رہے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک ان کی دلیری، بہادری اور عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے آج 2001 کے دہشت گردانہ حملے میں پارلیمنٹ ہاؤس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج صبح جب پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہوئی، اسپیکر اوم برلا نے جمہوریت کے مندر کی حفاظت کرتے ہوئے سیکورٹی اہلکاروں اور دیگر افراد کے ذریعے دکھائی گئی ناقابل یقین دلیری کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کی بدت کے خلاف لڑائی کے تئیں ملک کے عزم کو دہرایا۔ راجیہ سبھا میں چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ آج ہی کے دن بہادر سیکورٹی اہلکاروں نے پارلیمنٹ پر مسلح حملے اور جمہوریت کے ستون کو ہلانے کے دہشت گردوں کے ظالمانہ منصوبے کو ناکام بنایا تھا۔ دونوں ایوانوں نے شہداء کے اعزاز میں خاموشی بھی اختیار کی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی پارلیمنٹ حملے میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پارلیمنٹ کے احاطے میں شہیدوں کی تصویروں پر پھول نشاور کیے گئے۔ پارلیمنٹ کی ایک چونکا دینے والی سیکورٹی خلاف ورزی کے دوران لوک سبھا کو آج ایک ڈرامائی واقعے کا مشاہدہ کرنا پڑا، جب پبلک گیلری سے 2 افراد نے چیمبر میں چھلانگ لگائی، جس کی وجہ سے وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی اور اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا۔ ممبروں کے مطابق ایوان میں اس وقت وقفہ صفر چل رہا تھا جب ایک شخص وزٹرز گیلری سے چھلانگ لگا کر ویل میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ویل میں 2 افراد کے کودنے کی جان بوجھ کر حرکت تھی۔ اطلاع کے مطابق دونوں نے کینسٹرز نکالے جو پیلا دھواں چھوڑ رہے تھے۔ دلی پولیس نے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آج ایوان میں پیش آیا یہ واقعہ ہم سب کے لیے تشویش کا موضوع ہے اور سنگین بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جا رہی ہے جس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں سیکورٹی کے بارے میں ایک جامع جائزہ لیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں یونین ٹیریٹری میں پی ایم شری اسکولز، پی ایم اسکولز فار رائزنگ انڈیا کی عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں اسکولی تعلیم محکمے کے پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار نے اسکیم کے تحت اسکولوں کے انتخاب کے لیے رہنما اصول پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی۔ ایل جی نے ہدایت دی کہ بچوں کے لیے اسکولوں کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے ایک جامع 5 سالہ منصوبہ تیار کیا جائے۔ انہوں نے اسکولی تعلیم کے محکمے کو ہدایت دی کہ اسکولوں کے نصاب میں جنرل زوراور سنگھ، مقبول شیروانی اور دیگر اہم شخصیات کی گراں قدر خدمات اور کارناموں کو شامل کریں۔ واضح رہے کہ 2022 میں یوم اساتذہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں لگ بھگ 14,500 اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور ترقی کے لیے پی ایم شری اسکیم کا اعلان کیا تھا۔
पहले मरहले में तालीम की मरकजी वजारत ने पीएम शरी के लिए जम्मू कश्मीर के कुल 233 स्कूलों की मंजूरी दी थी, जबकि दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर यूटी ने वजारत को 265 स्कूलों की मंजूरी की सिफारिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट पंचंग 2024 इजरा किया। एलजी ने इस मौके पर ट्रस्ट और विद्वान परिषद की एडिटोरियल टीम और अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पंचंग मजहबी रसूम, मुकद्दस मौकों और त्यौहारों के बारे में मालूमात फराहम करेगा। तकरीब पर पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, ट्रस्ट के सदर पवन कुमार शास्त्री और कई दीगर शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के अरकान ने जम्मू से देहरादून के दरमियान हफ्तावार से रोजाना की बुनियाद पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एलजी की मुदाखलत तलब की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग अजला में कई जगहों पर छापे मारे। जराये के मुताबिक एसआईए ने ये छापे सीआरपीएफ और मकामी पुलिस की मदद से कुलगाम जिले के तुर्का तुशलू और हरदोनंदगुरी दमहाल हाजीपोरा इलाकों में दहशतगर्दी, गैर मकामी लोगों की हलाकतों और टारगेट हलाकतों के मामलों के सिलसिले में अमल में लाए। इस सिलसिले में अनंतनाग और कुलगाम पुलिस स्टेशनों में पहले से एफआईआर दर्ज है। उधर एसआईए ने अनंतनाग जिले के खनबल इलाके में आज सुबह शकील अहमद शायर नामी एक शख्स के घर पर छापा मारा, जो पेशे से एक ताजिर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में कश्मीर वादी के मुख्तलिफ जिलों में सरकार की तरक्याती और फलाही स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए प्रोग्रामों का एहतमाम बदस्तूर जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा श्रीनगर जिले में भी तरक्की के जज्बे के साथ जारी है। आज के प्रोग्राम के दौरान खसूसी वैन जिले के खनमू इलाके में पहुंची, जहां मुकामी लोगों, पीआरआई मेंबरान और लाइन डिपार्टमेंट के अफसरों ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर अफसरान ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए अहल शहरियों के साथ बातचीत की और कई सरकारी स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज खुराक, शहरी रसदात और अमूरी सार्फिन महकमे के इंतजामी सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने जिला बांडीपोरा का दौरा किया। एक मीटिंग में मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शुरू किया गया यह संकल्प यात्रा तरक्याती खलीज को कम करने की जानिब एक पेशगी पहल है और इससे ये बात यकीनी बन जाएगी कि मुल्क का हर गोशा मुख्तलिफ मरकजी वसाअत वाली फलाही स्कीमों के जरिए फले फूले। उन्होंने मीटिंग में अफसरों और दीगर एहलकारों को हलफ दिलाया, जिसमें अफसरों पर जोर दिया गया कि वो मुल्क की सालमियत और तरक्की के लिए पुरअज़म रहें। इस मौके पर जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा भी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने पुलवामा जिले में अपना मुतासिर कुन सफर जारी रखा। आज मुनक़द किए गए प्रोग्राम में जिले में काबिल जिक्र कामयाबी की निशानदेही की गई, जिसमें जिले में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाली पंचायतें भी शामिल थीं। प्रोग्राम के दौरान खसूसी वैन भी मुख्तलिफ पंचायतों में पहुंची, जिसका इलाके के लोगों, पीआरआई मेंबरान और लाइन महकमों के अहदेदारों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। विकसित भारत यात्रा वैन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम और 2047 तक कौम के बारे में उनके विजन को उजागर किया। बड़गाम जिले के सोयबुग इलाके में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में कई प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिनमें मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लाइन महकमों ने अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की। इस सिलसिले में कई स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश की गई। यात्रा के सिलसिले में खुसूसी वैन 12 पंचायत हल्कों में गई है, जिस दौरान बुलाक सोयबुग के हायर सेकेंडरी स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज अनंतनाग जिले के पंचायत हल्का ब्रीमार, चित्रगुल और थजवारा में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग एसएफ हामिद ने लोगों के मसाइल सुने। मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जिनमें लोगों को मरकजी माउनत वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। तकरीब के दौरान तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज जिला इंतजामिया शोपियां ने फौज की 12 सेक्टर आरआर के इश्तराक से जश्न चिले कलान का एहतमाम किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने 2024 का कैलेंडर और बुकलेट्स तकसीम किए, जिनमें मरकजी माउनत वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। सुकास्ट कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की सदारत में लीड टू लाइव के उन्वान से ओरिएंटेशन फाउंडेशन प्रोग्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रोग्राम 3 हफ्ते तक जारी रहेगा। तकरीब पर कमिश्नर सेक्रेटरी CST एंड इनोवेशन काउंसिल
सौरभ भगत भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक फर्द की मजमूई तरक्की में हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत को उजागर करते हुए शुरा की हौसला अफजाई की। उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने में तलबा की काविशों को भी सराहा। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने जनूबी कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वहां मुख्तलिफ इलाकों में शहतूत की नर्सरी, बुलाकों और फार्मर्स का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शहतूत दरख्तों की शजरकारी करना वक्त की अहम जरूरत है ताकि रेशम के कीड़ों की सनत ज्यादा से ज्यादा परवान चढ़े। इसके अलावा उन्होंने कई दफातर का भी मुआयना किया और मुलाजमीन के साथ तबादला ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई दिल्ली को कश्मीरियों के एहसासात को समझने की जरूरत है और लोकसभा के अहाते में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने दफा 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इस बात पर हैरानगी जाहिर की कि अगर मुल्क में हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही क्यों इससे महरूम रखा गया है। जम्मू कश्मीर के नामवर रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और सोफी मोहम्मद अकबर की यौम विसाल के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक इजलास में मरहूमीन को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक़दा इस इजलास में पार्टी लीडरान ने कहा कि इन अजीम रहनुमाओं ने जिस जज्बे, हुब्बुल वतनी और अवाम दोस्ती के साथ अपने फ़राइज़ अदा किए थे वो अपनी मिसाल आप है। प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने कश्मीर वादी में अवाम को दरपेश मुश्किलात, बिलखसूस इजाफी बिजली बिलों और महंगे गैस सिलेंडरों की फराहमी पर तशवीश का इजहार किया है। आज अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके का दौरा करने के दौरान एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी सदर ने कहा कि दफा 370 मनसूख होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हुकूक हासिल थे वो अब उनसे महरूम हो गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अगले साल सितंबर तक इलेक्शन कराने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का शुक्रिया अदा किया। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने J&K आनंद मैरिज एक्ट का खैर मकदम किया है और इसकी अमलावरी के लिए मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कमेटी के मेंबरान जिनमें सुरेंद्र सिंह चन्नी और एडवोकेट बिक्रमदीप सिंह भी शामिल थे ने कहा कि उनकी एक देरी न मांग थी और हमारी नस्लों को इस एक्ट के निफाज के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी थी। उन्होंने कहा कि सिख बरादरी अब तक हिंदू मैरिज कवानीन की पैरवी करते थे। कमेटी ने प्राइमरी क्लासों में पंजाबी गोरमखी जुबान मुतारिफ करने का मुतालबा किया। मरकजी साजो सामान और खिदमत टैक्स से मुतल्लिक दूसरे तरमीमी बिल 2023 को आज लोकसभा में पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बिल को पेश किया। इसका मकसद मरकजी साजो सामान और खिदमत टैक्स कानून 2017 में तरमीम करना शामिल है। सीतारमन ने आरजी टैक्सों की वसूली से मुतल्लिक बिल 2023 को भी लोकसभा में पेश किया। बीजेपी किसान मोर्चा के एहतमाम से आज इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में खेल सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जिसमें खत्ते के अंदर खेलों की सकाफत की नुमाइश की गई। इस मौके पर कई अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सदर राजकुमार चहर और जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के सदर सरबजीत सिंह जोहल शामिल थे। इन खेल सरगर्मियों में कई एथलीट्स ने कबड्डी और कराटे में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। क्रिकेट कश्मीर कप का फाइनल मुकाबला आज TRC ग्राउंड श्रीनगर में खेला गया। ये मुकाबला दादू रेंजर्स कश्मीर और एजीज ऑफिस 11 के दरमियान खेला गया। दादू रेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवरों में 9 विकेटों पर 191 रन बनाए। जवाब में एजीज 11 की टीम ने कुल 190 रन बनाए। इस तरह दादू रेंजर्स ने यह फाइनल मुकाबला 1 रन से जीत लिया। कश्मीर कप में कुल 16 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज बतौर मेहमानी खुसूसी मौजूद थे। कश्मीर वादी में दर्जा हरारत में मजीद कमी आई है और यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में कल सरद रात थी और कम अज कम दर्जा हरारत -5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में भी दर्जा हरारत -3.2 था। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।